Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 4, The Elephant's Nose of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topics were exercise A, number these sentences in the correct sequence of this chapter 4, which is in our page number 29, and our next topic was word meaning of this chapter 4. So students, we have completed exercise A, number these sentences in the correct sequence of this chapter 4, which is in our page number 29 in our English literature book as we assessed in our last video, and we have also completed word meaning of this chapter 4 in our fair English literature notebook in our last video. So we can say that we have completed exercise A and word meaning of this chapter 4 in our last video. And since today's our topic is exercise B, answer these questions of this chapter 4, which is in our page number 30. Okay, so students, pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to solve this exercise B, answer these questions in our fair English literature notebook. Okay, so let's see exercise B of this chapter 4. Chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is The Elephant's Nose. Okay, it's the name of chapter 4. The elephants means हाथी की nose means नाक. Okay, the elephant's nose it's mean हाथी की नाक. Okay, elephant apostrophe s है ना, it's mean होते काकी के. जो apostrophe s होता है ना, it's सो रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स. ये टू वर्ड्स के बीच में रिलेशन को शो करता है. ओके, जब किसी भी वर्ड के हेड पे कॉमा के बाद एस होना तो उसे बोलते हैं अपॉस्ट्रोफ एस. ओके, तो द एलिफेंट्स नोज इट्स मीन हाथी की नाक. ओके, लेट्स सी एक्सरसाइज बी. योर एक्सरसाइज बी इज आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, दिस मीन्स इन, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. आंसर दीज क्वेश्चंस इट्स मीन इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज what question did the elephant child ask that scared all the animals? What means क्या? Question means प्रश्न या सवाल. Did it so? Past independence tense helping verb. The elephant child it's mean हाथी का बच्चा. Ask means पूछा. That means की scared. Okay, here the meaning of scared at frightened. It's mean डरा दिया. Okay, all means सभी. The animals means जानवरों को. What question did the elephant child ask that scared all the animals? It's mean हाथी के बच्चे ने क्या प्रश्न पूछा जिसे सारे जानवरों को डरा दिया. ओके, हाथी के बच्चे ने ऐसा क्या पूछा, हाथी के बच्चे ने क्या सवाल किया, क्या क्वेश्चन किया. ओके, जिससे सभी जानवरों को डरा दिया. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द एलिफेंट चाइल्ड आस्क्ड व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर दैट स्कैर्ड ऑल द एनिमल्स. द एलिफेंट चाइल्ड इट्स मीन हाथी का बच्चा. आस्क्ड मीन्स पूछा. ओके, what क्या does it's a present indefinite helpy verb in singular form. a crocodile means एक मगरमच्छ. have means पास में. for means के लिए. dinner means ओके, डिनर मीन्स स्टूडेंट्स होता है रात का भोजन. ओके, दैट मीन्स जो. स्कैर्ड मीन्स स्टूडेंट फ्राइटेंड. इट्स मीन डरा दिया. ऑल दी एनिमल्स मीन्स सभी जानवरों को. योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द एलिफेंट चाइल्ड आस्क्ड व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर दैट स्कैर्ड ऑल द एनिमल्स. हाथी के बच्चे ने पूछा कि एक मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या है जिसने सभी जानवरों को डरा कर रख दिया. ओके, तो एलिफेंट्स के चाइल्ड ने, हाथी के बच्चे की इस क्वेश्चन ने कि मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या है, एलिफेंट के जो बच्चा था ना, उसके इस क्वेश्चन ने सारे एनिमल्स को, सारे जानवरों को डरा कर रख दिया. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज हु टोल्ड him where to find a crocodile. Okay, who told him where to find a crocodile? It's your second number question. who means किसने, told means कहा. told it's a second form of tell. Okay, tell की second form होती told. tell means कहना, told means कहा. him means उससे. here we use him for elephant child. Okay, elephants के child के लिए यहाँ पे him का use किया है. where means कहाँ, to find means पाया. Okay, the crocodile means मगरमच्छ. who told him where to find the crocodile? It's mean किसने उससे कहा कि क्रोकोडाइल वहाँ मिल जाएगा. ओके, किसने एलिफेंट के चाइल्ड से कहा था, हाथी के बच्चे से कहा था कि तुम्हें वहाँ पे क्रोकोडाइल मिल जाएगा, मगरमच्छ मिल जाएगा. ओके, तो हु टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड द क्रोकोडाइल. इट्स मीन किसने उससे कहा कि वहाँ मगरमच्छ मिल जाएगा. ओके, स्टैंड वेयर मीन्स कहाँ होता है, बट हेयर द मीन ऑफ वेयर वहाँ. ओके, यहाँ पे वेयर का मीन वहाँ है, तो किसने उससे कहा कि वहाँ मगरमच्छ मिल जाएगा. योर सेकेंड नंबर आंसर इज कोलो कोलो बर्ड टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड द क्रोकोडाइल. कोलो कोलो बर्ड इट्स मीन कोलो कोलो पक्षी ने. टोल्ड मीन्स कहा. टोल्ड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टेल. टेल मीन्स कहना, टोल्ड मीन्स कहा. हिम मीन्स उससे. ओके, हियर वी यूज हिम फॉर एलिफेंट चाइल्ड. ओके, एलिफेंट्स के चाइल्ड के लिए, हाथी के बच्चे के लिए हिम का यूज़ किया हुआ है. ओके,
वेयर मीन्स वहाँ, टू फाइंड मीन्स मिल जाएगा, ओके, प्राप्त कर लेंगे, दी क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ को. योर सेकेंड नंबर आंसर इज कोलो कोलो बर्ड टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड दी क्रोकोडाइल. ओके, इट्स मीन कोलो कोलो पक्षी ने उससे कहा कि तुम्हें वहाँ पे क्रोकोडाइल मिल जाएगा. कोलो कोलो पक्षी ने कहा कि क्रोकोडाइल वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, वहाँ मगरमच्छ मिल जाएगा. ओके, तो एलिफेंट के चाइल्ड ने, सॉरी, एलिफेंट्स के चाइल्ड को, ओके, हाथी के बच्चे को कोलो कोलो बर्ड ने कहा था कि वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मगरमच्छ मिल जाएगा. क्लियर? Let's see third number question. Your third number question is, how did the Kolo Kolo bird describe the Limpopo river? Okay, how means कैसे did it's your past independence tense helping verb. The Kolo Kolo bird, it's mean Kolo Kolo पक्षी, describe means वर्णन किया है. The Limpopo river, it's mean Limpopo नदी का, river means नदी. Okay, your third number question is, how did the Kolo Kolo bird describe the Limpopo river? It's mean Kolo Kolo पक्षी ने Limpopo river का वर्णन कैसे किया. Okay, तो स्टूडेंट योर थर्ड नंबर आंसर इज कोलो कोलो बर्ड describe the Limpopo river grey, green, grassy. Okay, तो कोलो कोलो बर्ड इट्स मीन कोलो कोलो पक्षी ने described, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ describe. ओके, describe मीन्स वर्णन करना एंड described मीन्स वर्णन किया. ओके, दी लिम्पोपो रिवर मीन्स लिम्पोपो नदी का. कोलो कोलो बर्ड describe द लिम्पोपो रिवर, इट्स मीन कोलो कोलो पक्षी ने लिम्पोपो रिवर का वर्णन किया. ग्रे, ओके, इट्स अ कलर. ग्रीन, इट्स अ कलर. ओके, ग्रे मीन्स ग्रे, ग्रीन मीन्स हरी. ग्रेसी, GREASY, ग्रेसी. हियर द मीन ऑफ ग्रेसी दैट कवर्ड इन अ लॉट ऑफ ऑयल, इट्स मीन बहुत सारे तेल में ढका हुआ, उससे बोलते हैं ग्रेसी, इट्स मीन चिकनी. ओके, तो कोलो कोलो बर्ड डिस्क्राइब द लिम्पोपो रिवर ग्रे, ग्रीन, ग्रेसी. तो कोलो कोलो बर्ड ने लिम्पोपो रिवर का, लिम्पोपो नदी का वर्णन किया है ग्रे, ग्रीन, ग्रेसी. इट्स मीन ग्रे, हरी और चिकनी. ओके, let's see 4 number question. Your 4 number question is, why did the elephant child go close to the crocodile? Okay, why means क्यों, did it's mean it's your past independence tense helping verb. The elephant child, it's mean हाथी का बच्चा. Go means गया, close means पास में. Okay, here the mean of close that पास में, not बंद करना. Okay, close का सेंस यहाँ पे पास के सेंस में, बंद करने के सेंस में नहीं. Okay, to the crocodile, crocodile means मगरमच्छ के. Why did the elephant child go close to the crocodile? ओके, इट्स मीन कि हाथी का बच्चा मगरमच्छ के पास, क्रोकोडाइल के पास क्यों गया. ओके, स्टूडेंट्स योर 4 number answer is, the elephant child went close to the crocodile to know that what he has for dinner. Okay, it's a 4 number answer. The elephant child, it's mean हाथी का बच्चा. went means गया. went, it's the second form of go. go की second form होती है went. go means गए, जाना. okay, go means जाना and went means गया. clear? close means पास में. okay, close to means पास में. the crocodile means मगरमच्छ के. okay, to know means जानने के लिए. that means की. what means क्या. he means उसके. has means पास में. okay, for means के लिए. dinner means a food which we taken at night time. जो हम नाइट टाइम को फूड लेते हैं उसे बोलते हैं डिनर. ओके, रात का भोजन. Your 4 number answer is, the elephant child went close to the crocodile to know that what he has for dinner. हाथी का बच्चा मगरमच्छ के पास ये जानने के लिए गया कि उसके पास रात के खाने के लिए क्या है. ओके, हाथी का बच्चा मगरमच्छ के पास ये जानने के लिए गया कि उसके पास डिनर के लिए क्या है, उसके पास रात के खाने के लिए क्या है. क्लियर? Your 5 number question is, how did the elephant child save himself from the crocodile? How means कैसे, did it's your past independence tense helping verb. The elephant child, it means हाथी का बच्चा. save means सुरक्षित किया, बचाया. himself means स्वयं को. okay, from means से. the crocodile means मगरमच्छ से. how did the elephant child save himself from the crocodile? it's your 5 number question. it's mean हाथी के बच्चे ने स्वयं को क्रोकोडाइल से कैसे बचाया. okay, हाथी के बच्चे ने स्वयं को क्रोकोडाइल से कैसे बचाया. ओके, तो स्टूडेंट्स योर 5 number आंसर इज, द एलिफेंट चाइल्ड सेव्ड हिमसेल्फ टू सेट बैक ऑन हिज हंचेस and he pulled from the crocodile. okay, the elephant child, it's mean हाथी का बच्चा. saved means बचाया. saved, it's a second form of save. save की second form होती है saved. saved means बचाना है, saved means बचाया. himself means स्वयं को. okay, टू सेट मीन्स बैठ कर, बैक मीन्स पीछे, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स अपने. हंचेस, HAUNCHES. हियर द मीन ऑफ हंचेस दैट अ बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लेग्स. इट्स मीन पैरों के शीर्ष भाग का पीछे के भाग, उसे बोलते हैं हंचेस. इट्स मीन कुबर. ओके,
एंड मीन्स और ही पुल्ड मीन्स उसने खींचा, एंड मीन्स और, पुल्ड मीन्स खींचा, ओके, फ्रॉम द क्रोकोडाइल मीन्स क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से, ओके. तो स्टूडेंट योर 5 नंबर आंसर इज द एलिफेंट चाइल्ड सेव्ड हिमसेल्फ टू सेट बैक ऑन हिज हंचेस एंड ही पुल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल. इट्स मीन कि हाथी के बच्चे ने मगरमच्छ से खुद को कैसे बचाया. तो हाथी के बच्चे ने मगरमच्छ से खुद की रक्षा अपने कुबर पर बैठ के और पुल्ड एंड पुल, इट्स मीन कि खींच कर इट्स मीन अपने आप को खींच कर क्रोकोडाइल से, और खींच कर उसने अपनी रक्षा की, ओके. द एलिफेंट चाइल्ड सेव्ड हिमसेल्फ टू सेट बैक ऑन हिज हांचेस एंड ही पुल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल. इट्स मीन हाथी के बच्चे ने अपने कुबर पर बैठकर, अपने हंचेस पर सेट करके, अपने कुबर पर बैठकर अपने आप को खींचकर, ओके, मगरमच्छ से स्वयं की रक्षा की, ओके. Student, your 6 number question, which is last question of this exercise B, is at the end, what happened to the nose of the elephant's child. Okay, at the end it's mean अंत में. Okay, what means क्या happened means हुआ. Okay, it's a second form of happen means होना, happen means हुआ. To the nose means नाक का of elephant child, it's mean हाथी के बच्चे की. Okay, at the end what happened to the nose of the elephant child, it's mean अंत में हाथी के बच्चे की नाक का क्या हुआ. Okay, तो स्टूडेंट योर 6 number answer is at the end the nose of the elephant child had stayed like that ever since long. Okay, it's mean कि at the end it's mean अंत में. Okay, the nose means नाक of the elephant child, it's mean हाथी के बच्चे की. हैड स्टेट मीन्स हो गई, ओके, रुक गई. लाइक मीन्स जैसे कि, दैट एवर सिंस इट्स मीन हमेशा के लिए. लॉन्ग, ओके, इट्स मीन लंबी. एट द एंड द नोज ऑफ द एलिफेंट चाइल्ड हैड स्टेट लाइक दैट एवर सिंस लॉन्ग. इट्स मीन कि अंत में हाथी के बच्चे की नाक हमेशा के लिए लॉन्ग हो गई, हमेशा के लिए लंबी हो गई. क्लियर? This student, I have described you all questions of this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You must understood all these questions of this exercise B. You have no problem in this exercise B. Clear? So students, I hope कि आपको एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी, आपको इस एक्सरसाइज बी के कोई भी आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो स्टूडेंट, टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन दिस एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर 4 द एलिफेंट्स नोज in your fair English literature notebook. Okay, it's a 2 days class, and students, your homework is that learn exercise B of this chapter 4 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. स्टूडेंट्स, आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी एज इट इज़ अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी. फर्स्टली मेंशन CW एंड आफ्टर डेट एंड देन चैप्टर नंबर, चैप्टर 4, चैप्टर नेम द एलिफेंट्स नोज, and then exercise B heading answer these questions and last note down these questions sir. Okay, तो आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन सर अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं. ये आपका क्लास वर्क है. एंड स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी के सारे क्वेश्चन सर, ओके, लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. क्लियर? आपको 1 to 6 ये क्वेश्चन से सारे लर्न करने एक्सरसाइज बी के. चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज बी है, आंसर डीज क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से. आपका आज का होमवर्क है. क्लियर? तो स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड योर क्लास एंड होमवर्क. सो ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन exercise B of this chapter 4 in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.